Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we are going to start with practice problem from chapter number 4, that is ledger. We have already completed with solved example part, illustrations, and now we are on page number 117. So let us start with question number 1. So here in front of you, you can see on the right hand side, question number 1 is given, and they are asking us to prepare journal entries out of this ledger. So what we will do, we will check the details. What they have given is cash account, purchase account and Jayshree's account. So जब हमें लेजर से जर्नल में कन्वर्ट करना है तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे, दैट इज वी विल गो इन डेट वाइज. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1 पुट कर दिया है, ठीक है, in the books of Sopan as they have given. And now we are going to start with the first entry. First entry is regarding February 1 balance of rupees 8,000. तो बैलेंस की एंट्री नहीं आती है. नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकेंड इज देयर, नो, 2nd February is missing. देन थर्ड वन, 3rd February सेल्स की एंट्री दी हुई है. तो एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है. सो अकॉर्डिंगली वी विल पुट हियर 2019. 3rd February we will write cash account debit and the amount is 700 rupees to sales account 700, being goods sold on cash basis, being goods sold on cash basis. So here we have completed with our first journal entry. So next one, 4th February. Do we have any fourth number, fourth date? No. 5th one, yes, 5th is there. 5th February क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ठीक है. बाय टेलीफोन चार्जेस, व्हाट डज इट मीन, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है, और कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है विथ 750 रुपीज. सो वी विल राइट हियर 5th February टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 750 being telephone charges paid. Being telephone charges paid. Okay. After 5th February, check 6th February का कोई इंफॉर्मेशन दिया, yes it is given to interest, right? That means what? Cash account debit to interest account. So we will write over here 6th February cash account debit to interest account. Amount is 600 being interest received
interest received. After 6th, 7th February, no, 7th February is missing. 8th February जयश्री, ठीक है, तो जयश्री का अकाउंट भी आप देखिए 8 फरवरी को वहां पर क्रेडिट हुआ है, तो दिस बोथ ऑफ दिस एंट्रीज आर सिमिलर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्रीज अकाउंट। डेट 8 फरवरी 2019, अमाउंट 1500, being cash received from Jayashree. Cash received from Jayashree. Moving towards next 9th February. 9th February आप देखिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेसेस दिया है, और यहाँ पर परचेस अकाउंट में भी आप देख सकते हैं सिमिलर एंट्री। तो एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 9th February 2019, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, and the amount is 800, being goods purchased for cash, being goods purchased for cash। तो ये 9th का हो गया। 9th के बाद चेक कीजिए 10th, 10th February is missing, 11, 12, 13, 14, these are all missing dates, ठीक है। डायरेक्टली 15 हमें दिखाई देता है यहाँ पर, और जयश्री के अकाउंट में सेल्स जो है वो 15 के हिसाब से दिखाई देता है, दैट इज जयश्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके अलावा कोई भी प्रीवियस डेट हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। सो 15th Feb, we will write Jayashree account debit to sales account, Jayashree's account debit to sales account, amount 5000। so what does it mean, इसका मतलब होता है क्रेडिट सेल है, ठीक है। being goods sold on credit basis, goods sold on credit basis, या goods sold on credit लिखेंगे then also it is okay, ठीक है। चलो 15th is over, 16, 17, 18, any date if you can find just write it, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, डायरेक्टली लास्ट डेट पे देखिए 28 में यहाँ पर भी क्लोजिंग किया है, यहाँ पर भी क्लोज किया है, और यहाँ पर भी क्लोज किया है। दैट मीन्स 28 को कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, सिर्फ बैलेंस लिए गए हैं, ठीक है। तो इतने ही जर्नल एंट्रीज हमको पास करने हैं। लेट अस टेक द टोटल नाउ। टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज
9,350, 9,350. Okay. So after finishing question number 1, in question number 2, they have given us subsidiary book. Prepare necessary ledger account from the following subsidiary book. Subsidiary book से हमको ledger account prepare करने हैं, ठीक है? Necessary ledger account. So we have two subsidiary book. One is purchase book and another one is purchase return book. ठीक है? So how many ledger we require? Just check it out. Amol, Aishwarya, Vivek, Seth and Shabari. 5 ledgers we require. और यहाँ पर परचेस रिटर्न उससे रिलेटेड है. सो 5 ledgers बनाएंगे, 3 लाइन ईच. स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट. So let us start with the solution of question number 2. Purchase book is given, purchase return book is given. हमने यहाँ पर 5 ledgers prepare कर लिए according to the name Amol, Aishwarya, Vivek, Seth and Shabari. ठीक है. Now we will pass it one by one. सबसे पहले अक्टूबर 2019 है और परचेस बुक दिया है. यू ऑलवेज नो कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो जो करस्पॉन्डिंग अकाउंट है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा. से फॉर एग्जांपल अमोल है, तो अमोल को हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो डेट में पुट करते हैं यहाँ पर 2 अक्टूबर 2019 and I will write buy purchases account and the amount will be 7,500. ठीक है. Then on 7th अक्टूबर ऐश्वर्या का अकाउंट में हम सेम एंट्री पास करेंगे. सो मैं यहाँ से इसे जस्ट डेट चेंज कर देता हूँ. 7th अक्टूबर परचेस अकाउंट अमाउंट विल बी 2,400. ठीक है. नेक्स्ट देखो 10th, क्योंकि नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट आता है वो है 10th. सो 10th को ऐश्वर्या को परचेस रिटर्न की एंट्री यहाँ पर आई है. तो व्हाट डज इट मीन? हमने जो गुड्स परचेस किया था 2,400 का, उसमें से 480 रुपीज का जो गुड्स है वो हम रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है. सो रिटर्न कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा. इन द सेंस यहाँ पर हमने क्रेडिट में लिखा था जब हमने परचेस किया था, रिटर्न होगा तो हम डेबिट में मेंशन करेंगे. ओके. सो वी विल राइट ओवर हियर टू परचेस रिटर्न अकाउंट purchase return account and the amount will be 480 rupees on 10th October 2019. Okay, so done with that. Next is 11th October 2019. विवेक से क्या किया? परचेस. अगेन विवेक के बुक में हम यहाँ पर लिख देंगे 11th February. Sorry, we have to mention October, not February. Everywhere we need to mention October. ओके. सो विवेक से हमने परचेस किया है वर्थ रुपीज 3,900 का. आफ्टर विवेक ऑन 17th अक्टूबर 2019 सेठ से हमने परचेस किया है. तो सेठ के बुक में 17th का मैं यहाँ पर लिखूंगा 17th अक्टूबर. क्या अमाउंट परचेस किया? जस्ट चेक इट आउट. 6,500. तो यहाँ मेंशन करते हैं 6,500.
ठीक है। सिमिलरली शबरी की बुक में 27 को है, उससे पहले देखो सेठ को हमने यहाँ पर रिटर्न किया है 20th अक्टूबर को, तो सेठ की बुक में 20th अक्टूबर परचेस रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर आई विल राइट इन द बुक्स ऑफ सेठ ऑन 20th अक्टूबर परचेस रिटर्न, कितना अमाउंट रिटर्न किया है 650। ठीक है। नेक्स्ट 27th को शबरी, शबरी से परचेस किया है हमने 1000 रुपीज का गुड्स। तो शबरी के बुक में आप देखिए यहाँ पर ऑन 27th अमाउंट इज 1000, और 28 को क्या किया है 200 रुपीज का गुड्स रिटर्न किया है। तो यहाँ पर डेट पुट कर देंगे 28 वर्थ रुपीज 200 हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक एक करके अभी क्लोज करेंगे। आप देख रहे हैं अमोल का जो अकाउंट है उसमें सिर्फ क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो यहाँ पर मैं ये बैलेंस लिख लेता हूँ 7500, 7500 डबल अंडरलाइन कर देंगे क्लोज करने के लिए, और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो भी कितना होगा 7500। व्हाट वी विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। फरवरी का जो लास्ट डेट है दैट इज 28 फरवरी, तो वो पुट करेंगे हम 2019। ठीक है। और इसी बैलेंस को हमको क्या करना है ब्रॉड फॉरवर्ड। सो ऑन 1st March 2019 we will write by balance brought down and that is 7500। तो ऐसे हमको इसको ब्रॉट डाउन करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज ऐश्वर्या's अकाउंट। ऐश्वर्या के अकाउंट में क्रेडिट साइड इज मोर, सो वी विल राइट 2400 ऑन बोथ द साइड, और माइनस करेंगे उसमें से 480। सो 2400 माइनस 480 1920 आई थिंक आएगा। 1920। ठीक है। 1920 इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे ब्रॉड डाउन। तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया टू मेक माई वर्क इजी 1920। ठीक है। सिमिलरली विवेक का अकाउंट 3900 रुपीज है। बैलेंस भी वही आएगा 3900। क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे 3900। यस राइट, वी हैव टेकन अ रॉन्ग डेट एवरीवेयर। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फरवरी व्हाट वी विल राइट नवंबर। ठीक है। एंड हियर विल बी दिसंबर। तो सब जगह चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ फरवरी इट विल बी सॉरी अक्टूबर एंड इट विल बी नवंबर। ठीक है।
सो लास्ट डेट जो होगा अक्टूबर मंथ का, हम लोग देखेंगे लास्ट डे क्या होता है अक्टूबर मंथ का। सो अक्टूबर मंथ का जो लास्ट डेट होता है 31 अक्टूबर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो लास्ट डेट लेंगे वो हम लेंगे 31 अक्टूबर 2019, और 1 नवंबर को ये ओपन होगा, ठीक है। सो इन द सिमिलर मैनर एवरीवेयर वी विल राइट और ओपनिंग जो डेट होगा वो होगा 1 नवंबर 2019। ओके, तो बैलेंस हमने विवेक के अकाउंट का ले लिया है। नाउ नेक्स्ट इज सेठ्स अकाउंट। सेठ का अकाउंट का क्रेडिट साइड इज मोर, सो 6500, 6500 बोथ द साइड, और 6500 माइनस 650 करेंगे, 5850 विल बी द बैलेंस। टू बैलेंस carried down on 31st October, और ब्रॉड डाउन हो जाएगा 5850। शबरी लास्ट अकाउंट, क्लोजिंग इज 1000, बोथ द साइड, और यहाँ पर रिमेनिंग इज 800 on 31st October, and on 1st November we will take the balance again, ठीक है। और ये सबसे लेजर हम प्रिपेयर करेंगे एक परचेस का। किसका लेजर प्रिपेयर करेंगे? परचेस अकाउंट का, ठीक है। सो परचेस अकाउंट का लेजर इज पेंडिंग। यहाँ पर मैं एक परचेस अकाउंट का लेजर प्रिपेयर कर लेता हूँ। Here I will write परचेस अकाउंट, ठीक है। तो परचेस अकाउंट में मुझे यहाँ पर क्या मेंशन करना है? सीधा जो टोटल है, टोटल आप देख रहे हैं परचेस अकाउंट का कितना दिया है, 21,300। तो परचेस अकाउंट उससे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ऑन द लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को आई विल राइट टू सन्ड्री परचेसेस, सन्ड्री परचेसेस, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 21,300 का, 21,300, यही टोटल ले लेंगे। बैलेंस भी 21,300 लेंगे, एंड वी विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ठीक है, ऑन द लास्ट डे 31 अक्टूबर 2019। तो ये हो गया परचेस अकाउंट। सिमिलरली और क्या बनाएंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। हाँ, इसे आपको अगर ब्रॉट डाउन करना है तो यहाँ पर 1 नवंबर को आप कर सकते हैं। व्हाट यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,300, और फिर अभी आप बनाएंगे परचेस
रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। सो यहाँ पर आप बैलेंस देखेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट का टोटल बैलेंस है 1330, ठीक है। सो परचेस रिटर्न अकाउंट आप क्रेडिट साइड में पुट करेंगे 1330, यू विल राइट बाय सन्ड्री परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2019, और इसी पे हम क्लोज करेंगे यहाँ पर 1330, बैलेंस भी वही आ जाएगा 1330। टू बैलेंस carried down 31 October 2019, 1 November 2019 by balance brought down 1330। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर हो गया। सारे लेजर, नेसेसरी लेजर्स थे वो हमने प्रिपेयर कर लिए। गॉट इट एवरीवन। इस तरीके से जब भी हमको सब्सिडरी बुक दिया रहता है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है लेजर अकाउंट में, और सब्सिडरी बुक से कन्वर्ट करना तो बहुत ही इजी है, ठीक है। So let us move towards the next question. Question number 5 we are going to solve here. What they are asking is prepare Aparna's account in the books of Suparna. तो हम लोग यहाँ पर जो heading put करेंगे, ठीक है, solution to the question number 5, and we will write in the books of Suparna. And here we will prepare a ledger, date, particular, journal folio, amount, we will mention the accounts, Aparna's account. So into bracket we have to mention something. Just check this out. Balance क्या दिया है? Balance due from Aparna. Due from Aparna मतलब अपर्णा से लेना बाकी है। So हम अपर्णा को क्या बोल सकते हैं? Debtor. ये हमारे नॉलेज के लिए है जस्ट, ठीक है। So credit side,
सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग वन बाय वन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ऑन 1 जनवरी 2019 बैलेंस दिया हुआ है और बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा से लेना बाकी है। डेटर, डेटर इज एन असेट, असेट शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे ओपन करने के समय एंड द अमाउंट विल बी 60,000। नेक्स्ट इज 4 जनवरी सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, अपर्णा को गुड्स सेल किया है। सो अपर्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन 4 जनवरी 2019 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 का सेल है, 10% डिस्काउंट है। 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब 1,500, और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। तो 15,000 माइनस 1,500 दैट विल गिव अस 13,500, राइट। सो 13,500 का यहाँ पर इफेक्ट आएगा, एंट्री आएगा। इस तरीके से आपको करना है। गॉट इट एवरीवन? सो ग्रॉस का जो अमाउंट था दैट वाज 15,000। हमने यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया। विच डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 1,500 और 13,500 पे उसको लॉक किया है, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑन 7th गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा, अपर्णा ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न कर दिया मतलब गुड्स आ रहा है। कहां से आ रहा है? अपर्णा से आ रहा है। तो अपर्णा इज गिवर, क्रेडिट द गिवर। अपर्णा का अकाउंट क्रेडिट होगा और परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। तो 7 जनवरी 2019 we will write by purchase return, परचेस रिटर्न अकाउंट। अच्छा, अभी इंफॉर्मेशन क्या है? 1,500 इन ग्रॉस। क्या हमने यहाँ पर ग्रॉस में रिकॉर्ड किया था? नहीं, हमने यहाँ पर नेट पे रिकॉर्ड किया था, राइट है। तो अभी भी हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो दे आर टॉकिंग अबाउट 1,500 ग्रॉस, बट उस पर 10% दैट मीन्स 150 रुपीज का डिस्काउंट हम काउंट करेंगे एंड दैट मीन्स इसका जो रियल वर्थ हमारे पास है दैट इज 1,350, 1,350। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? तो हमको भी किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन हमारा नेट बेसिस पे रिकॉर्ड हुआ था, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन भी नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए एंड दैट इज 1,350। So accordingly, when we have sold the goods, we have considered trade discounts. So जब हम goods return back लेंगे, so at that time as well, gross का amount अगर हमें दिया है तो हम उस पे भी discount consider करेंगे, तो जाकर के उसका इफेक्ट करेक्ट आएगा। ठीक है, डन विथ 7th जनवरी। नेक्स्ट 11th जनवरी, रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा से क्रॉस चेक मिला हुआ है जो हमारे बैंक में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन 11th जनवरी 2019 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट हमने लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट? अपर्णास अकाउंट डेबिट। सॉरी, आई मेड मिस्टेक, यहाँ पर रिसीव किया गया है। ठीक है, तो हमें मिल रहा है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट में। ये मैंने रॉन्ग जगह पे पोस्ट कर दिया, यहाँ पर आएगा 11th जनवरी 2019 वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णाज अकाउंट। ठीक है, सो वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट and the amount is 50,000.
ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एंट्री पास की और हमने शो किया कि अपर्णा से हमें क्रॉस चेक मिला, राइट। नेक्स्ट इज 17 जनवरी, इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा। फिर से हमने क्या किया, सेल किया है 17 जनवरी को, सेल किया तो यहाँ पर डेबिट साइड में मेंशन करेंगे 17 जनवरी 2019 टू सेल्स अकाउंट वर्थ ₹12,000। Got it, everyone? Next, 25th January, sold goods to Aparna in cash। 25th January हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अच्छा, कैश में सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी बोलिए, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट है, आंसर इज नो। क्या हमारे पास सेल्स अकाउंट है, आंसर इज नो। यहाँ पर सिर्फ अपर्णा अकाउंट है और अपर्णा का नाम आया ही नहीं, किसमें, ट्रांजेक्शन नंबर 25 में। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? क्या एंट्री आया, जर्नल एंट्री क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो अपर्णा में कोई एंट्री आएगी नहीं, राइट। 30th January, received cash from Aparna 33,000 in full settlement of her account। तो कैश हमें मिल रहा है यहाँ पर, we will write over here कैश अकाउंट डेबिट होगा 30th January 2019, we will write by cash account and the amount is 33,000। और इन्होंने कहा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया यहाँ पर, तो हम टोटल ले लेंगे। टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 85,500 एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 84,350। तो माइनस करेंगे 85,500 सो टोटल विच इज मोर वी विल राइट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पर टोटल ज्यादा है, सो वी विल राइट 85,500, 85,500, ठीक है। तो 85,500 ये लिखने के बाद हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये टोटली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट। अब उससे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ठीक है। तो हम ये जो टोटल आया है डेबिट साइड का, इसको ये क्रेडिट के टोटल से माइनस करेंगे विच इज 84,350 रुपीज। तो 85,500 माइनस 84,350, दैट इज 1,150 रुपीज। सो ये जो 1,150 रुपीज है ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाय डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट है बाय डिस्काउंट अकाउंट। और जनवरी में लास्ट डेट होता है 31st का, बट हम 30th को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि पेमेंट भी 30th को हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर लेजर हमने बनाया अपर्णाज अकाउंट। ओके, सो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर 25th के ट्रांजेक्शन के लिए नोट आप मेंशन करेंगे ऑन 25th January 2019 the transaction is on cash basis, is on cash basis, hence not recorded in Aparna's अकाउंट। अपर्णा के अकाउंट में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोट आप अपने समझने के लिए वहां पर लिख दीजिए और ये पर्टिकुलर वर्किंग नोट आपको मेंशन करना है फॉर डिस्काउंट पर्पस। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन।
तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।